تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یونا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ہم تیسرے باب پر پہنچ چکے ہیں اور یہ خداوند کے یونا کے لیے دوسرے مشن کے حوالے سے ہے کہ نینوا جا جو بڑا شہر ہے اور وہاں منادی کر۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید ڈاکٹر حلیم۔ شکریہ بھائی۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر حلیم، پچھلے باب میں ہم نے یونا کی مصیبت اور اس کی دعا اور خداوند کے اس دعا کے جواب دینے کے حوالے سے بات چیت کی تھی، اور جبکہ مچھلی نے اسے خشک زمین پر اگل دیا۔ ابھی میں تیسرے باب کی پہلی 4 آیات کو پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال کروں گا۔ اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر حلیم، میں چاہوں گا کہ آپ یونا کے دوسرے مقصد کے حوالے سے کچھ بتائیں، یعنی جو دوسرا موقع خداوند نے یونا کو دیا۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ جب خدا ہمیں بلائے، ہم کسی مخصوص کام کو کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں، یا جب وہ ہمیں کوئی کام سونپتا ہے تو ہم ناکام ہو سکتے ہیں، اور یہ ہماری انسانی فطرت ہے کہ ہم ناکامی اور کامیابی سے گزرتے ہیں، لیکن دوسری جانب خدا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں تربیت کے مراحل سے گزارتا ہے جب تک ہم اس نئے مقصد کے لیے موزوں صورت اختیار نہیں کر لیتے، اور یہی اس نے یونا کے ساتھ بھی کیا۔ اس نے اسی وقت سے اس کی تربیت کی جب اس نے اسے پہلی مرتبہ بلایا، اور پھر دوسری مرتبہ اس نے مختلف طور پر اس کی تربیت کی۔ شاید پہلی بار میں یونا کے یہودی یا اسرائیلی شخص ہونے کی حیثیت سے کہ وہ در حقیقت غیر قوم والے لوگوں کو زیادہ طور پر پسند نہیں کرتا، اور ساتھ ہی اسوری سے خاص طور پر ناپسند تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ خداوند نے اسے ایک پیغام دے کر بھیجا جو اس صورتحال کے مطابق تھا جس میں وہ بطور انسان تھا، اور اسی لیے خداوند نے اس سے کہا کہ اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ تو ان کو پسند نہیں کرتا، ان کی موت کا خواہاں ہے، تو جا اور انہیں بتا تم مرو گے۔ لیکن خداوند نے کام کرنا شروع کیا عدالت کے اس پیغام میں بھی جس میں یونا نے فرمانبرداری نہ کی، سو خداوند نے اس پر کام کرنا شروع کیا، اسے مسلسل تربیتی مراحل سے گزارا، اور میں کہوں گا کہ بہت سی باتیں ہوئیں، ملاحوں اور مسافروں کی لان تان سے لے کر آندھی یا شدید طوفان تک، یا اس کے سمندر میں ڈالے جانے تک، یا وہ سب باتیں جو اسے سمندر میں ڈالے جانے سے پہلے کہی گئیں، اور بعد ازاں ایک بڑی مچھلی کا اسے نگل جانا اور اس کا سمندر میں تہہ میں اتر جانا۔ سو اس نے خداوند سے دعا کی، اور اس دعا میں اس نے خداوند سے باتیں کی جس پر ہم بات کر چکے ہیں، اور یہ سب کچھ الہی تربیت ہے۔ اور خداوند نے اسے بتایا کہ انسان کے واسطے دکھ اٹھا کر موت تک پہنچنا کتنا مشکل ہے، یا دوسرے الفاظ میں خداوند نے یونا کو تربیت کے سلسلہ وار مراحل سے گزارا، یہاں تک کہ وہ موت کے کنارے پہنچ گیا، تاکہ جانے کہ عدالت سخت ترین چیز ہے، اور اس طرح اس کے دل میں اوروں کے لیے رحم اور ترس پیدا ہوگا۔ صحیح۔ سو یہ الہی تربیت کا ایک سلسلہ تھا۔ خدا چاہتا تھا وہ ایک مقام پر پہنچے، اور یونا پہلی بار میں اس بلند درجے کے مقام پر نہ پہنچ پایا۔ مجھے دوسرے موقع اور دوسرے سونپے گئے کام سے بے حد حوصلہ ملا جو براہ راست خدا کے دل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
जो कभी किसी खराब वो चीज को कभी भी फेंकता नाकाम नहीं नहीं है, होता। जैसा मुनासिब समझता है एक बर्तन बना लेता है। हमें पतरस की मिसाल से समझाइए उसकी नाकामी और इनकार करना। जी हाँ, मैं कहूँगा कि पतरस शुरुआत में हमेशा जवाब देने में तेजी दिखाता था और खुद को अपने आप में एक सूरमा समझता था। लेकिन खुदावंद ने उससे बात की और यहाँ तक कहा कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा और ईमान जब तू जाता ना रुजू करे रहे, तो भाइयों को मजबूत करना। लेकिन अफसोस कि उसकी मुसीबत के वक्त सारे शागिर्द भाग गए और वो खुद जो अपने आप में सूरमा था खुदा का इनकार कर बैठा, एक आम सिपाही एक लौंडी के सामने, और सही उसने कसम खाई और लानत की, लेकिन जी खुदावंद ने उसे हरगिज ना छोड़ा। सही और बाइबल कहती है खुदावंद ने मुड़कर पतरस को देखा। यकीनन उसके देखने में मोहब्बत और शफकत थी। सो अगर आप नाकाम होते हैं वो आपको फिर से उठा खड़ा करेगा। जी सो पतरस उसकी नजर की मलामत के सबब से ना रोया, या इसलिए नहीं कि उसे उसकी बात याद आई के, बल्कि उसकी मोहब्बत की नजर के सबब से। गोया खुदावंद की नजर पतरस से कह रही हो कि मैं अब भी तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा बल्कि तुझे दूसरा मौका दूंगा। एक परस्तार है जिसने एक गीत लिखा जिसके बोल थे कि जिस नजर ने पतरस के दिल को मोम किया, शफकत भरी नजर। मैं इस बात पर गौर करना चाहूंगा जो खुदावंद ने यूना से कही कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। पहले बाब में दिए गए काम के बावजूद, जो कि ये था कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। इन दोनों कामों के मुतालिक बताएं जो उसे सौंपे गए और इनके मतलब में क्या फ़र्क है, और असल इल्हाम में अल्फाज के इंतखाब के मुस्तनद होने पर, उसके खिलाफ मुनादी का मतलब मुखालफत का ऐलान है। वो सजा का पैगाम जो कि था। पहला काम था, जी, क्योंकि उनमें बदी थी। क्योंकि उनमें बदी थी और उनकी शरारत खुदा के हजूर पहुंची। शरारत खुदावंद के सामने बराह रास्त की गई, इसलिए खुदावंद खामोश ना रहा। उसकी पाकीज़गी उसकी फितरत है जो गुनाह को बर्दाश्त करने की कतन इजाजत नहीं देती, क्योंकि खुदावंद को गुनाह से कराहत है और ये उसकी फितरत के ऐन मुखालिफ सही। है। सो सजा और अदालत लाजमी करार है, इसलिए उसने उनके खिलाफ मुनादी करवाई, एक सख्त और खतरनाक पैगाम और एक मखसूस खबरदारी। यहाँ पर मैं कहूँगा, हालांकि दूसरा काम पहले से मुख्तलिफ था, लेकिन उसने पहले ही काम के अल्फाज को इस्तेमाल किया और दूसरे के अल्फाज को रहने दिया। सो पहला जी। काम यह था कि उसके खिलाफ मुनादी कर, यानी अदालत के 40 दिन में नैनमा तबाह किया जाएगा, लेकिन इस बात की मुनादी कर रहमत का पैगाम दे। तो वो कह रहा है कि लौट जाओ आओ, और खुदा उन्हें तुम बता पर कि रहम तुम्हारी करेगा। शरारत ठीक है, सामने है, लेकिन खुदा का दिल मोहब्बत से भरा है। उसका फजल तुम्हारी निजात के लिए काफी है, उसकी रहमत तुम्हारी मुंतजिर है, और वो तुम में से हर एक को ये कहने के लिए खड़ा है कि तुम्हारे गुनाह माफ हुए, सही लेकिन लौट आओ और तौबा करो। पहला जी। पैगाम गजब का था और दूसरा पैगाम रहमत का। शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। अब यूना को खुदा ने दूसरी मर्तबा बुलाया कि यह बड़ी बात नहीं कि खुदा हमें दूसरा मौका देता है। क्या ये बात शानदार नहीं कि खुदा हमें दूसरा मौका बख्शता है? ये खुदा के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि उसने यूना से ही ऐसा ना किया। आपको याकूब का किस्सा याद है जो पैदाइश की किताब में है। याकूब इतनी बार नाकाम हुआ कि वो खुदा के वास्ते शर्मिंदगी बन गया और उसके नाम की तहकीर का सबब ठहरा, लेकिन खुदा ने उसे ना छोड़ा। यहाँ वो फिनीएल में उससे कुश्ती कर रहा है। याकूब को उस रात एक अहम सबक सीखना था, लेकिन इससे पहले कि याकूब उसे सीखे, खुदा को उसकी रान की नस को छूना पड़ा। और शमाउन पतरस ने भी ठोकर खाई और गिरा और 3 बार मसीह का इनकार किया, लेकिन खुदावंद ने उसे गजब की निगाह से ना देखा, बल्कि रहमत और शफकत से। मसीह ने उसे नए मौके दिए और यूहन्ना मरकज, जो खिदमत के आगाज में एक अच्छा खादिम था, पहले मिशनरी सफर के दौरान बुज़दिली से लौट आया, लेकिन खुदा ने बरनबास के वसीले से उसे दूसरा मौका दिया। भाई, हमारा खुदा मोहब्बत से भरा है, वो हमेशा हमें दूसरे मौके बख्शता है। काश हम उन सब से फायदा उठा सकें।
पहले काम में पहले बाब में यूना का रद्द अमल ये था कि लेकिन यूना खुदाउन के हजूर से तरसीस को भागा। लेकिन यहाँ तीसरे बाब और तीसरी आयत में बाइबल बताती है तब यूना खुदाउन के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफिर 3 दिन की राह थी। इसके मुतालिक बताइए। जी भाई, उस तब्दीली के मुतालिक जो यूना में आई। इससे हमें यूना में होने वाले काम का पता चलता है, वो बदल खुदा कर और भी कामयाब रहा। शख्सियत हो गया। खुदा कामयाब रहा। ये तो मैं कहूंगा 100% है। सही। खुदा कभी नाकाम नहीं होता और वो जानता है कि हम उन मकासद को कैसे हासिल करेंगे जो उसके दिल के मुआफिक हैं। पहली बार यूना ने नाफरमानी की और इसलिए वो खुदा की हजूरी से भाग गया। लेकिन दूसरे सौंपे गए काम से, जबकि वो कई तरबियती मराहिल से गुजर चुका था और खुदावन ने अपनी मर्जी और मकसद को हासिल कर लिया, और यूना खुदावन के हुक्म के मुताबिक गया और इससे उसकी फरमाबरदारी जाहिर हुई। सही। दूसरे लफ्जों में हम नाफरमान या जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन खुदा हमें एक हद तक जाने देता है ताकि मतलूबा शय तक पहुंच सकें, जो कि उसकी मुकम्मल फरमाबरदारी है। मैं इन अल्फाज पर गौर करना चाहूंगा। नैनवा बहुत बड़ा शहर था और उसने एक लफ्ज को शामिल किया जिसने दर हकीकत पूरे मतलब को बदल दिया कि खुदा के सामने बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफिर 3 दिन की राह थी, बावजूद जो उसने पहले बाब में कहा कि वो बहुत बड़ा शहर था। मैं चाहूंगा कि आप इस बात की वजाहत फरमा दीजिए। ये बात जाहिर करती है कि नैनवा एक बहुत बड़ा शहर था, यहाँ तक कि वो उसके इर्द गिर्द गोल खाके का भी जिक्र करता है, और उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी, और लिखा है कि 3 रोज की मुसाफत तकरीबन 60 मील बन जाते हैं। सही। सो इंसान चलकर उस तक 3 दिन में पहुंच सकते थे। लेकिन साथ ही जिस आदमी को खुदा की तरफ से पैगाम देकर भेजा गया, वो आदमी 3 दिन तक ना चला, वो एक ही दिन चला। बल्कि वो आदमी 1 दिन चला। सो उसने 1/3 सफर तय किया, और वो देख रहा था कि खुदा क्या करता है। हालांकि खुदावन ने पहली आयत में भी उससे कुछ बातें कहीं, पहली और दूसरी आयत में और पहले और तीसरे बाब में। मैं कहूंगा कि पैगाम एक ही जगह है, लेकिन उसने उससे कहा कि उठ और बड़े शहर। ये वही अल्फाज हैं जो उसने उससे पहली मर्तबा कहे थे, लेकिन ये कि उसके खिलाफ नबूवत कर से बदल कर इस बात की मुनादी कर हो गया। ये पहली बार था कि उनके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है, नहीं बल्कि इस बात की मुनादी कर ठीक है। जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया है। मतलब खुद से एक लफ्ज ना कहना, बल्कि जो कुछ मैं तेरे मुंह में डालता हूं वही कहना। ये बड़ा शहर है, मेरे लिए कीमती है, और मैं उसे बर्बाद करके कभी खुश नहीं हो सकता, लोगों के उस बड़े अंबिया को जो उस मुल्क में है। क्या बहुत बड़े शहर से मुराद ये है कि वो खुदा की नज़र में बहुत बड़ा शहर था? इस शहर में ताइब होने वाले और लौट कर आने वाले लोग थे। जैसा पौलुस से कहा गया, खौफ ना कर बल्कि कहे जा और चुप ना रह। शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे मुल्क पर या शहरों पर तबसरा करें जो अपनी शरारत और मसीह और अंजील से नफरत के लिए जाने जाते हैं। भाई, कभी कभार ईमानदार इन ममालिक या शहरों के लिए दिल में कड़वाहट रखते हैं, लेकिन हम खुदा की नज़र से इन शहरों को कैसे देख सकते हैं? ये शहर उसके लिए अहम हैं। खुदा उन लोगों को राह रास्त पर ला सकता है। खुदा उस जगह ऐसे शख्स को खड़ा कर सकता है जो उसका खादिम हो। शायद उस शहर से खुदा उनके हुजूर वो जाने आए जो यीशु मसीह की पैरवी करें। हमें इन शहरों, मुल्कों और लोगों को खुदा की नज़र से कैसे देखना है? सबसे पहले मुझे ये समझना है कि खुदा जाती तौर पर मुझे कैसे देखता है, इससे पहले कि मैं लोगों को खुदा की नज़र से देखूं। बुनियादी तौर पर मैं भी इस तबका या फिर जमात से नहीं जो उन लोगों से मुख्तलिफ हों जिनका जिक्र आपने किया, बल्कि मैं कहूँगा कि हम दोनों ही एक ही दरख्त की शाखों से आते हैं। सो हम में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन खुदा ने अपने बेइंतहा फजल और रहमत से मुझ पर रहम किया और पहुँचाकर मुझे निजात बख्शी। तो मुझे अब खुदा की उन रहमतों से वाकिफ़ होना चाहिए जो मुझ तक पहुँची। वो उस शख्स तक भी पहुँच सकती हैं, लिहाजा मैं उन्हें शफ़क़तों की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि खुदा मेहरबान और शफीक है और इंसानों की हलाकत से हरगिज़ खुश नहीं होता। खुदा फरमाता है कि शरीर की मौत में भी खुशी है। खुदा की खुशी इसमें है कि इंसान उसके पास वापस लौट आए, और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। उसने एक तालीम याफ्ता या मजहबी तबके या बुलंद इखलाकी मेयार रखने वाले तबके की बात नहीं की, बल्कि वो कहता है कि सब आदमी, चाहे वो जिस भी तबके से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे उन्होंने उसके वजूद से इनकार किया, चाहे वो ईमानदार हो या फिर ना हो, क्योंकि खुदा सबसे मोहब्बत रखता है। पतरस रसूल कहता है, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे।
सो गज़ब खुदा की फितरत के मुताबिक पसंदीदा नहीं है और वो इससे खुश नहीं होता। और अगर वो गज़बनाक होता है तो इसकी वजह यह है कि उसका गज़ब उसकी पाकीज़ा फितरत और अदल के मुताबिक है, लेकिन खुदा की खुशनुदी है कि इंसान लौट आए। एक जी। तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी, बल्कि हलाक होने वाले के लिए नहीं। खुदावन का साल मकबूल 1 साल है, लेकिन इंतकाम को खुदावन का रोज कहा जाता है। वो सब्र करता है क्योंकि खुदा सब लोगों की निजात चाहता है और हमारा खुदा बाप ऐसा है। जब यूना मछली के पेट से निकल आया जो मसीह के जी उठने की तरफ इशारा करता है, तो उसने मुनादी की और नैनवा के सब लोगों ने उस मुनादी के सबब से तौबा की। तो इसका मतलब क़यामत है, उसने रूहों की निजात के लिए मुनादी की। आप मसीह और यूना के दरमियान क्या मुशाबत देखते हैं, यानी जी उठने के बाद मुनादी में? मैं कहूँगा कि नैनवा के लोगों के साथ जो कुछ हुआ कि उन्होंने ईमान लाकर तौबा की और शायद यूना का मौत से निकलकर क़यामत में आ जाना उनके लिए निशान था, एक निशान था। और कुछ कहने से बढ़कर उनकी जिंदगी में मौसर साबित हुआ कि 40 दिन में नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। सो अलामत मौसर थी, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि रूहों की निजात के लिए मौसर बात वो रूहें जो निजात याफ्ता हैं, जिनके ऊपर गहरा असर हुआ कि वो गुनाह से निकलकर खुदा के पास लौट आएं। मसीह की मौत और क़यामत है, ना कि तौबा की मुनादी। सब लोग तौबा की मुनादी करते हैं और खुदा को ताइब होने वाले लोग पसंद हैं, लेकिन इंसान की ज़ात पे एक गहरा असर ये है कि एक इंसान ने मेरी खातिर और आपकी खातिर मौत यानी सलीबी मौत कबूल की। मैं इस शख्स को ये इनाम दे सकता हूँ, जी, वो हकदार है। सही। सादा तरीन चीज़ वो इनाम यही है कि मैं उसे अपनी जिंदगी दे दूं। जिसने अपनी जिंदगी मेरी खातिर कुर्बान की, वो मुआ और जी उठा। सो मुझे उस शख्स को अपनी जिंदगी देनी है जो मेरी खातिर मुआ और जी उठा, और अलामत में बादज़ा तकसीम है। फिर जब यूना मछली के पेट से निकल आया, उसने मुनादी की। सो मुनादी क़यामत के बाद हुई और मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। जहां तक मुनादी का ताल्लुक है, लोग कहते हैं खुदा नहीं जानता कि कौन निजात पाएगा, और खुदा लोगों को निजात दे सकता है। जिन्हें वो चाहता है उन्हें बुला लेगा। या हम खुदा की इबादत करते हैं और जो हमारे से शरीक होना चाहे उसका खैर मकदम है, वो निजात पा सकता है। खुदा के मंसूबे में ये मुनादी की बात कहाँ है? खुदा ने हमें एक खास मिशन अता किया है और हमें उस काम को पूरा करना है जो उसने हमें सौंपा है कि जाओ। जब वो कहता है जाओ तो हमें जाना चाहिए। जब वो कहता है अंजील की मुनादी करो तो हमें अंजील की मुनादी करनी है। लेकिन जब हम सुस्त होंगे और अपनी सुस्ती के मुताबिक अपने उसूल वाजे करेंगे, माफ कीजिएगा लेकिन ये शरारत है। कोई भी जो खुदा का कलाम समझता है इसे कबूल नहीं कर सकता। सही। ये 2 पहलू हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। पहला पहलू इबादत का पहलू है। खुदा की इबादत करना ये जरूरी है। तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो। ये पहला पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू कि हम शाही काहिनों का फिरका हैं ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। जो कलीसिया इबादत करती है और मुनादी नहीं करती, वो नामी कलीसिया है। जो मुनादी करती है और इबादत ना करे, वो भी नामी कलीसिया है। कलीसिया अपनी सही हालत में मुनादी और इबादत और मुनादी दोनों करती है, और इबादत मुनादी से पहले है। अगर हम पहले खुदा को उसका हक नहीं देते तो वो किस तरह हमें मुनादी के लिए भेजेगा? खुदा को उसका हक देना लाजमी है। इसीलिए पहले पत्रस के 2 बाब में मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। 9वीं आयत ताकि फिर शाही काहिनों का फिरका हो। पहले उसकी इबादत करो, फिर उसकी मुनादी। अगर हमारी इबादत दुरुस्त हो तो सिमत दुरुस्त है। अगर हम खुदा को उसका हक देते हैं और सही अंदाज में इबादत करते हैं, और जब हम मुनादी करने को निकलेंगे तो सही मुनादी करेंगे। लेकिन गालिबन हमारे यहाँ मसाइल मुकद्दस कहानत के मामले में होते हैं। सो रूहों के मामले में भी मसाइल पाए जाते हैं। अगर हम मुकद्दस कहानत के मामले में सही हो तो इससे हर तरह के मसाइल हल हो जाएंगे। बोने और उसकी खूबियां जाहिर करने में जिसने तुम्हारी तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया बाइबल है। खुद कहती है कि जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए? क्यों कर आप उन्हें बताएंगे कि खुदावंद उन्हें जानता है और वो उन्हें फिर वो ले कैसे आएगा। इस्तेमाल करेगा? वो किसे इस्तेमाल करेगा? जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए? और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने? और जब तक हमें भेजा ना जाए मुनादी क्यों कर करें? सो ये सारा का सारा अमल इकट्ठा है। पौलुस कहता है हम उनके लिए मुशक्कत करते हैं जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए। वो हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए, उन्हें चुना गया। मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन वो कहाँ हैं? हम उन तक पहुँचने के लिए मुनादी करते हैं। बोने वाला अपना बीज बिल्कुल बोने ऐसा निकला। ही है।
बोने वाले को रात दिन बोना पड़ा और खुदावंद ने बीज को खालिज किया और उसे तैयार शुदा जमीन में डाला ताकि वो इन बातों को कबूल करे। हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। हम दूसरे सलातीन के 14वें बाब की 25वीं आयत से जानना चाहते हैं कि यूना नबी था और उसने रहमत के साथ इसराइल के लिए नबूवत की, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वो क्या नबूवत थी जो यूना ने की और क्या वो पूरी हो चुकी है या अभी बाकी है। क्या कहेंगे डॉक्टर हलीम? हालांकि ये वाकई एक नबूवती किताब है, लेकिन यूना ने इसके मुताबिक कलाम किया कि उसके खिलाफ नबूवत कर, जिसे हमने पिछली किस्त में देखा, और उसके खिलाफ अदालत की मुनादी कर। जब वो उनसे बात करने को गया, उसने उन्हें फजल या उम्मीद के बारे में कुछ ना कहा। मुझे तो वो अंदाजा ही अजीब लगता है जिससे उसने उनसे कहा कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। सो उसने उन्हें उम्मीद की कोई बात ना बताई। अगर वो तौबा करें तो उनके लौटने पर निजात की उम्मीद है। ना तो उन्हें उम्मीद दिलाई कि खुदावंद उन्हें कबूल कर लेगा, लेकिन 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। वो भूल गए कि खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। इसलिए यूना ने खुदा के दिल को जानने और रूहों के लिए उसके जज्बात समझे बगैर कलाम किया। इसलिए उन्होंने तौबा की और रोजे की मुनादी की और तौबा की और खुदा पर ईमान लाए, और नतीजा ये निकला कि खुदा ने शहर को माफ किया और उन पर अदालत हरगिज ना की। सो वो एक नबी था जिसने दूसरे सलातीन में नबूवत जी, वो की। एक नबी था, और हमने पहले भी कहा कि दूसरे सही। सलातीन की किताब के 14वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, उसने यरूबाम पर नबूवत की कि शाह इसराइल यरूबाम दोम इसराइल की सरहद को बहाल करेगा जो दुश्मनों ने उनसे ले ली और उसके थी। लिए यही काफी है कि उसकी गवाही मसीह ने खुद अपनी जुबान से दी, जो सच्चा तरीन शख्स है जिसने कहा यूना नबी एक निशान था। ठीक है, फिर बाइबल कहती है और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला और उसने मुनादी की और कहा 40 रोजे के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। और हालांकि उसने ढिठाई के साथ तीसरे मिशन को ना कहा, लेकिन खुदावंद ने लोगों के दिलों पर असर किया और उन्होंने तौबा करना शुरू कर दिया, जिसके मुतल्लिक हम मजीद पढ़ेंगे और अगली किस्त में सुनेंगे। मैं 40 की अदद पर गौर करना चाहूंगा। 40 ही क्यों? बाइबल मुकद्दस में और कहां-कहां हमें 40 का अदद दिखाई देता है? दरअसल 40 रोज का एक खास अरसा है, जिस तरह बाइबल में इसका जिक्र वाज़े तौर पर होता आया है। जैसा कि पैदाइश की किताब में है कि जमीन पर पानी 40 रोज तक बढ़ता रहा तूफान के अयाम में। 40 दिन तक। पैदाइश की किताब में तूफान नूह के वक्त। इसका जिक्र मूसा के हवाले से भी मिलता है कि वो पहाड़ में गायब हो गया और 40 दिन तक खुदा के साथ रहा। और एलिया के हवाले से भी लिखा है कि वो 40 दिन और 40 रात तक चल कर गया। और यीशु के हवाले से भी लिखा है कि जब वो पहाड़ पर था, उसने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा और इसके बाद उसे भूख लगी। सो हमेशा 40 दिन का जिक्र बाइबल में किया गया है। ये एक आजमाइश का अरसा है और एक तवील अरसा गोया खुदावंद ने लोगों को तौबा करने के लिए एक मोहलत अता की। सो इससे ये जाहिर होता है कि खुदा एक हद तक सब्र करता है। सही। भले ही वो तवील हो, लेकिन उसकी एक हद है। और इसमें उन गुनाहगारों के वास्ते भी एक पैगाम है, वो जो टालते रहते हैं, और हमें जरूरी है कि हम उन्हें समझाएं कि फजल के वक्त की भी एक हद है, जिसे बाइबल खुदा का साले मकबूल कहती है, जो कि एक तवील अरसा है जिसकी एक शुरुआत और उसका एक इख्तिताम है। जी। इसलिए इंसान को इससे खबरदार रहना है। सबसे पहले तो मेरी उम्र के मुताबिक मेरे पास वक्त कम है। उम्र के मुताबिक इंसान महदूद है। वक्त की एक शुरुआत है और इख्तिताम है। अगर ये मसीह के बगैर खत्म हो जाए तो इंसान के लिए फजल का वक्त नहीं रहेगा, और इसीलिए जब तक हम जिंदा हैं हमें इसे गैर अहम नहीं जानना है। अगर वो निजात का तजुर्बा नहीं करेगा और नैनवा के लोगों को नहीं बताएगा कि खुदा के पास लौट आएं, तो मुमकिन तौर पर खुदा के फजल का दौर जो खुदाम यीशु मसीह की आमद तक हर सूरत में बाकी रहेगा, ये एक महदूद अरसा है, पर हमें इससे फायदा उठाना है, वरना इंतकाम की रोजी हमें हैरत में डाल देगा और हमें इससे बचना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस पैगाम के अल्फाज को गिने कि 40 रोज बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। चंद अल्फाज। ये एक पैगाम है, एक बशारती पैगाम। बहरहाल ये एक ही जानिब से दिया गया जो चंद अल्फाज पर मुश्तमिल है। मैं इसमें से एक सबक हासिल करना चाहूंगा, ना सिर्फ मैं बल्कि हर वो खादिम जो खुदा के कलाम को रूहों तक पहुंचाता है। क्या इसका इन्हिसार बहुत सारी इल्मी और बयान करने की सलाहियतों और शानदार और मौसर शख्सियत पर है?
لوگ نجات کیسے پاتے ہیں اور بولنے والا خدا کے کلام کا براہ راست استعمال کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں غور کرنا ہے کہ خدا نے کیا کہا۔ میں پھر سے پڑھوں گا کہ جس پیغام میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو ایک شخص کو کامیاب اور پھلدار پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ اسے خود کو مکمل طور پر روح القدس کے تابع کرنا ہے اور ایمان رکھنا ہے کہ وہ وہی بولتا ہے جو روح القدس چاہتا ہے کہ وہ بولے، نہ کہ یہ اس کی اپنی باتیں ہیں۔ اپلوس فیض تھا لیکن وہ نجات کے مقصد سے واقف نہ تھا، اس لیے کہ اکولا اور پرسکلا نے اسے اپنے گھر لے جا کر زیادہ بہتر طریقے سے اسے نجات کی راہ کے متعلق بتایا۔ دیکھیں، شاندار شخص ہونا لوگوں کو نجات نہیں دیتا۔ میں ایسے بول سکتا ہوں کہ لوگوں کو سننے میں اچھا لگے، وہ تالیاں بجائیں اور کھڑے ہو جائیں اور تعریف کریں جیسا کہ بادشاہ کے ہاں ایسا ہوتا ہے، اور وہ اس طور پر لوگوں کے جذبات اور ان کے احساسات پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بشارت کا مطلب لوگوں کے جذبات اور احساسات اور ان کی خوبصورت اور پرخلوص باتوں سے دل لبھانا یا ان پر قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ صحیح طور پر بشارتی کلام یہ ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ ہمیں ان الفاظ پر اتفاق کرنا ہے جو خداوند نے کہے۔ اور دوسری بات، بشارت میں دو واضح حصے ہونا بہت ہی لازم ہے، بھلے ہی طریقہ مختلف ہو۔ پہلا خدا کی محبت اور دوسرا خدا کے پیغام کو رد کرنے پر کون سے ناگزیر نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شکریہ ڈاکٹر حلیم، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ بہت خدا آپ شکریہ، کو برکت دے۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ ناظرین، ہمارا خدا کیسا عظیم خدا ہے۔ ہمارا خدا جو ہماری ناکامی اور نافرمانی میں ہماری تربیت کرتا ہے، تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں جب تک ہمیں فساد، نافرمانی اور نقصان سے نکال نہ لے اور ہمیں ایک ایسا برتن نہ بنا لے جو اس کمہار کے مطابق ہے۔ عزیزو، ہمیں جاننا ہے کہ فضل کا دور جس میں ہم جی رہے ہیں بہت ہی محدود ہے۔ خداوند کے سال مقبول یا 40 روز بعد فضل کا وہ دور جو مسیح کے زمین پر ہونے کے وقت سے شروع ہوا، اور جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ وہی ہے جسے خداوند کے سال مقبول میں بھیجا گیا، اس کا خاتمہ مسیح کی آمد سے ہوگا، جبکہ وہ کلیسیا کو لینے آئے گا، اور جب مسیح آئے گا تو فضل کا دور ختم ہوگا۔ کلام کو رد کرنے والوں کے لیے انتقام کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، تاکہ اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے، اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ ناظرین، زندگی کی اور موت کی راہ آپ کے سامنے ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو ڈرا دھمکا کے نظریے یا عقیدے کی پیروی کے لیے دباؤ نہیں ڈال رہا۔ مسیح کی پیروی دہشت گردی یا زور زبردستی سے نہیں ہوتی۔ اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے ہے۔ مسیح آپ کے سامنے زندگی کی راہ ہے۔ سو اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو مسیح کو قبول کیجئے۔ اگر آپ صاف ستھری زندگی چاہتے ہیں تو مسیح کو قبول کریں۔ اگر آپ ابدی رحمت کو چاہتے ہیں تو مسیح کو قبول کریں۔ اگر آپ اس پیغام اور مسیح کو رد کرتے ہیں تو فقط ابدی عذاب آپ کے حصے میں آئے گا۔ اور یہ انجیل ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے